So hello everyone and welcome back to my YouTube channel. And today with us we have a multi-talented personality, the founder of Target GPAT, Mr. Rahul Ahiwar. And Sir has completed his B Pharmacy from Bhopal College, and also he'll be completing his Masters in Pharmaceutical Chemistry from Rajiv Gandhi University, which is a state university. And one thing that is very specific about Sir, that is why we have invited him for today's session, is his ability to crack competitive examinations without any coaching or without any appropriate guidance. Sir has cracked GPAT examination, GPAT 2021. So thank you, Rahul Sir, for your presence today. Thank you so much, Pam, for inviting me in this meeting. Yeah. So from the thumbnail, as yes, you can see, that today's session is going to be about Pharmacy, a Milestone and Glimpse of Pharmacy. And Rahul sir is here to guide you all and to share his prestigious knowledge with all of us with respect to pharmacy. sure. But before we begin, I would have a request to all of the viewers. Sir has his Instagram channel, Sir has his YouTube page, and he uploads quite often good videos and explanatory videos on various pharmaceutical and healthcare topics. So in the description section, his links are provided. Please do share, subscribe his channel as well, and follow the Instagram page. So, sir, shall we begin? Yes, and I want to say that Yeah. at the 1 June, we also launched our application on Play Store, so student can also download it from Play Store. So there we have providing you free mock test and some study material from GPAT. So we are regularly updating our app. So if you can want to download it, you can download. Many things we are providing on this app is free of cost for all students. So you can download. Okay, so viewers, please download the app. It's available on Play Store and it's the same name, Target GPAT. So I'll be sharing the link of the same in the description section. Please do download the same, and you will, as Sir told, you'll get many mock tests and so much of study materials on the application. Sure. So, sir, the number one question is related with your caliber only. How do you crack GPAT without a coaching? So there are many students who have asked this question that they are not able to afford expensive coaching या उनको time नहीं मिल पाता. So how do they crack GPAT without a coaching? ओके सो देखिए पयाम ऐसा है कि अभी जिस हम टाइम में हम जी रहे हैं, इस टाइम पे क्या है कि हमारे पास रिसोर्सेज की बिल्कुल भी कमी नहीं है। हमारे पास इंटरनेट है, यूट्यूब है, गूगल है, तो जो भी कुछ हमको चाहिए रहता है, जरूरी नहीं कि वो हमें ऑफलाइन कोचिंग से ही मिले पढ़ने को। जब मैं जिस टाइम पे प्रिपरेशन कर रहा था, उस टाइम पे लॉकडाउन का टाइम था, 2020 और 21 के बीच की बात है ये। एट दैट टाइम यू ऑल नो कि कॉलेजेस भी बंद थे और कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बनते, तो बच्चों की मजबूरी हो गई थी कि घर से ही प्रिपेयर करें। तो उस टाइम पे जो सबसे मेन सोर्स जो पढ़ाई का रहा है वो है यूट्यूब। तो मैं ये बोलूंगा कि एक जो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप जितना चाहो उतना कंटेंट, जितने अच्छे अच्छे टीचर से चाहो आपको मिल सकता है। मे भी आपको एक ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस में इतने अच्छे, इतने बेस्ट टीचर ना मिले। उसमें एक ड्रॉबैक ये रहेगा ऑफलाइन में कि अगर आपने कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली, मान के चलिए आपने फी पे कर दी, आप अफोर्ड कर सकते, बट ऐसा चला बाद में कि यार आप टीचर, मतलब जो कोचिंग आपने ज्वाइन करी उसमें इतने बढ़िया टीचर नहीं है, अब आप स्विच नहीं कर सकते उसमें। बट ऑनलाइन का ये सिस्टम रहता है कि आप जितने चाहो टीचर स्विच कर सकते हो अपने हिसाब से, जिस टीचर का आपको समझ में आ रहा। तो वो एक चीज मेरे को बहुत बढ़िया लगी। उसमें मेरे पास इतना वो बेनिफिट हुआ कि मैं जब चाह रहा था तब अपनी क्लास निकाल के ऑनलाइन पढ़ रहा था, सोते हुए, जैसा चाहो वैसा। अब ऑफलाइन का ऐसा रहता है कि आपको एक फिक्स टाइम पे तैयार होना है, इंस्टीट्यूट जाना, वहां पढ़ना है, जो टीचर पढ़ाएगा वो करना, उतना लिमिटेड रह जाता है। लेकिन जब आप खुद से प्रिपेयर करते हो बिना कोचिंग के, आप अपना यूट्यूब, ऑनलाइन सोर्सेज, इनका आप अच्छे से बेनिफिट लोगे, आप बिल्कुल आसानी से क्रैक कर जाओगे। जीपेट एग्जाम जितना लोगों को लगता है उतना कठिन है नहीं। हम पिछले 4 सालों में जो पढ़ते हैं, बोलते हैं कि बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलते हैं सर मैं 6 सेम में हूँ, 7 सेम में हूँ, मैं किस तरह से प्रिपेयर करूँ। तो ऐसा रहता है स्टूडेंट कि ऑफलाइन जो है, हम फर्स्ट सेम से ही हम जीपेट की प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। मतलब हम चाहते नहीं, लेकिन हम जब पढ़ते हैं फर्स्ट सेम से लेकर 8 सेम तक आते हैं तो हमारी प्रिपरेशन होती चली जाती है। बस होता है क्या, एंड में हमको उसको पूरा रिवाइज करना। तो जो हमने पिछले 8 सालों में पढ़ा, हमारे कॉलेज से जो पढ़ा, उसको एंड में जाके हमको रिवाइज करना रहता है।
तो जरूरी नहीं कि आप ऑफलाइन कोचिंग से ही करो। यूट्यूब है हमारे पास सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इस टाइम पे जो हमारे लिए अवेलेबल, ये हमारे लिए एक तरीके से मान सकते हैं जो अभी टाइम चल रहा है वो एक गोल्डन टाइम है, क्योंकि इससे पहले अभी देखा जाए तो 5 से 7 साल पहले इतना ज्यादा नहीं था यूट्यूब ऑनलाइन चीजों का, लॉकडाउन के बाद ये ज्यादा बढ़ा है। तो आप उसका बेनिफिट लो, आपके पैसे बचेंगे, आप अपनी ऑफलाइन कोचिंग में इतनी हाई फी पे करते हो, उससे ज्यादा बेटर रहेगा कि मैं यही रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट को। कोचिंग जरूरी नहीं कि बहुत से स्टूडेंट मेरे साथ में जो थे उन्होंने काफी ज्यादा मुझसे अच्छी रैंक लेकर आए हैं ऑफलाइन, मतलब बिना ऑफलाइन कोचिंग के लॉकडाउन में घर से स्टडी करके। तो ये मेरा यही कहना है स्टूडेंट्स के लिए कि आप एक्सपेंसिव कोचिंग को ज्वाइन करने से अच्छा आप ऑनलाइन पढ़िए। ऑनलाइन आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाती हैं, अच्छे हम्म। टीचर मिल जाते हैं, आप टीचर स्विच कर सकते हो, जिस टीचर का समझ में आप उसका पढ़ सकते हो। आपके पास कोई पाबंदी नहीं है कि अब एक टीचर है तो बस इसी से पढ़ना है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, वो सारी चीजें रहती है ना। तो इस वजह से तो मैंने जो प्रिपरेशन करी थी वो सारी ऑनलाइन करी थी, पूरा ओ, यूट्यूब से पढ़ा था। जैसे इसके अलावा मैं चैनल उस टाइम पे मेरा क्या चैनल भी बना लिया था, तो मैं उस टाइम पे अपनी प्रिपरेशन करता था साथ में, उस पर भी पढ़ाता रहता था उस टाइम पे। और मैं कुछ चैनल आपको प्रेफर करूंगा, जैसे फार्माकोलॉजी के लिए आप सॉल्यूशन फार्मेसी मैंने किया था, तो पुष्पेन डॉक्टर पुष्पेन सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। हाँ। उसके अलावा केसीएल ट्यूटोरियल पे अनुराग जायसवाल सर, वो उनका कॉन्सेप्ट भी बहुत बढ़िया है, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। इसके अलावा कुछ टाइम पे ने फार्मेसी इंडिया, जीडीसी, जो कुछ बड़े बड़े पॉपुलर चैनल्स हैं जीपेट के, उन सबका लिया था। तो इन ओ, सारे चैनल्स को आप प्रेफर कर सकते हो। और एक सबसे बेस्ट, अगर आपको सबसे क्लियर कॉन्सेप्ट समझना है, तो डॉक्टर नजीब का एक चैनल है, डॉक्टर नजीब लेक्चर्स करके यूट्यूब पे, बहुत बढ़िया पढ़ाता है। आप एक बार उसको जरूर विजिट करिएगा। क्लासेस लॉन्ग रहती है उसमें, बहुत ज्यादा 2-2 घंटे की क्लासेस रहती है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत बारीकी से क्लियर होते हैं उसमें। तो एक बार जाकर उसको जरूर चेकआउट करिए। ठीक। सो व्यूवर्स, 3 मेजर पॉइंट्स जो सर राहुल सर ने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। एक तो ऑनलाइन कोचिंग का फायदा ये है कि आप सोते हुए लेटे हुए कैसे भी तरीके से अपने पेस पे पढ़ सकते हो, अपनी स्पीड पे। और आप कभी भी स्विच कर सकते हो, जो सर ने बोला, अगर आपको कोलॉजी का मन है आप कोलॉजी, मेडिकेम का मन है मेडिकेम। And he also recommended few channels like Najib Sir's lecture, KCL, Pushpendra Solution Pharmacy, जो सर ने खुद भी रेफर किए थे. So I hope that helps you all with the first question. Sir, the next question is, what are the future prospects of pharmacy? मतलब बंदा एक बार फार्मेसी में आ गया तो आगे क्या क्या स्कोप है, आगे क्या उसका करियर, व्हाट विल बी इज लाइफ अहेड? एक कॉमन क्वेश्चन आता है, सो वुड यू लाइक टू हाईलाइट अपॉन दैट क्वेश्चन? हाँ देखिए, ये क्वेश्चन ज्यादातर लोगों के मन में रहता है कि आपके फार्मेसी का आगे क्या स्कोप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में रहता है। तो देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि फार्मेसी का जो स्कोप है अभी इस टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। आफ्टर पेंडेमिक आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा कुछ अगर हुआ है तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मेडिकल फील्ड में सबसे ज्यादा आपको जो है कि बूम देखने को मिला है इस टाइम पे। जो है कि फार्मेसी की अगर हम बात करें मेनली, तो जनरली लोगों को अगर हम कहीं पर बताते हैं, जनरली मैंने ये फेस किया है कि कोई पूछता क्या कर रहा है, हम बोलते सर फार्मेसी कर रहा है, बी फार्म। हम्म। अच्छा, मतलब मेडिकल खोलोगे? राइट। ओह शिट। Sir, I think so. Yeah. Hello. हाँ हेलो। Yeah, sir, you're audible now. I think so. Which network issues, sir? Yes, sir. You can ओके continue. ओके। तो तो मैं ये बोल रहा था, जैसे हम ज्यादातर कभी कहीं बोलते, एक मिनट सॉरी, लास्ट हम लोग सुन पाए थे, आप इट बोल इज रहे थे कि नॉट लाइव, किसी को मैं इट बोलता हूँ इज कि लाइव। फार्मासिस्ट, वो सुना था हमने लास्ट, सर. ओके ओके, नो सर, इट्स वेट अ नॉट लाइव. मिनट। डोंट वरी सर. प्री रिकॉर्डेड है, एडिट हो जाएगा. टेंशन. या. एक फोन आ गया था थोड़ा सा, अभी अभी ऑडिबल हूँ? यस सर, you're audible. अभी ओके। तो मैं बोल रहा था, जैसे हम कोई पूछता है, हम बताते हैं कि हम बी फार्म कर रहे हैं, एम फार्म कर रहे हैं, तो उनका डायरेक्ट कहने का ये रहता है अच्छा मतलब मेडिकल खोलो। उन लोगों को बस इतना ही पता है कि बी फार्म करके आप एक बंदा एक मेडिकल रन कर सकता है। राइट. बहुत कम लोगों को ये पता है। जब जब हम हायर एजुकेशन पे, स्टार्टिंग में बच्चों को नहीं पता रहता, लेकिन जब हम हायर एजुकेशन पे आते हैं तो हमें पता चलता है। देखो, बी फार्म एक इतनी बड़ी फील्ड है ना,
जिसमें बंदा किसी भी तरफ जो है कि जा सकता है। सबसे पहले हमने जैसे ही बी फॉर्म किया तो हमारे पास हम एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंप्लीट होने के बाद हमारे पास देखिए कितने चांसेस रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन जॉब इन गवर्नमेंट सेक्टर, सबसे पहला जो रहता है। फार्मेसी अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो आप एज अ फार्मासिस्ट कई वैकेंसीज निकलती स्टेट लेवल पे, यूपीएससी लेवल पे, तो आप वहां पर कर सकते हैं। अभी जैसे कि मैं एमपी की बताऊं, एमपी में भी एमपी फार्मासिस्ट की पोस्ट आई है बहुत सारी, 500-700 के लगभग है। इवन हर एक स्टेट में इस टाइम पे निकलती जा रही है, तो आप वहां पर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको और अच्छे लेवल पे गवर्नमेंट जॉब करना है तो सबसे बेस्ट ड्रग इंस्पेक्टर, आफ्टर दैट ड्रग एनालिस्ट, फूड एनालिस्ट, इतने सारे मतलब हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, वो जाते हैं। उसके अलावा अगर आप बिजनेस लाइन में अगर जाना चाहते हो, अगर आप सोचते हो कि हमें जॉब ना करके बिजनेस करना, तो उस टाइम पे ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें बंदा बिजनेस भी कर सकता है, जॉब भी कर सकता है। जॉब की। अदर फील्ड में अगर हम अदर सब्जेक्ट्स में देखें लाइक कॉमर्स वगैरह, आर्ट्स, तो इनमें क्या रहेगा, कॉमर्स वाला बंदा या तो किसी के अंडर में सीए की जॉब करेगा, अगर उसको नहीं मिलती है तो फिर वो उसके पास और कोई चांसेस नहीं होते काम करने के। इस हमारी जो फील्ड है हम इसमें बिजनेस लाइन में जाना चाहते हो, आपके पास यू कैन रन फार्मेसी, यू कैन रन होलसेल शॉप, आप चाहो अपनी इंडस्ट्री ओपन कर सकते हो, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद हम्म। जितना आपका मतलब बजट है आप अफोर्ड कर सकते हो, उस लेवल पे अपना बिजनेस रन कर सकते हो। ये हमारे लिए एक बेनिफिट है, क्योंकि हमारे अलावा कोई आदमी बंदा फार्मेसी रन नहीं कर सकता है फार्मासिस्ट के अलावा, ना कोई मेडिसिन को होलसेल सेल कर सकता है, ना ही कोई बिना फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के कोई भी इंडस्ट्री नहीं चला सकता, हम्म। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये हो गई हमारी बिजनेस सेक्टर में। इसके अलावा एकेडमिक्स में अगर आपको जाना है तो आपको फिर बी फार्म के बाद एम फॉर्म में जाना पड़ेगा। तो वो आप उसके बाद एकेडमिक्स में अगर आपका जैसे कि किसी का पैशन रहता है कि बच्चों को टीचिंग करवाया जाए, तो यू कैन कंप्लीट योर एम फॉर्म एंड देन यू कैन ज्वाइन इट। आफ्टर दैट मैक्सिमम स्टूडेंट जाते हैं इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो, अगर आपको उस चीज में अगर अच्छा एक्सपीरियंस है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो अगर आपका इंटरेस्ट है उसमें। अगर अगर आप मार्केटिंग में जाना चाहो तो मार्केटिंग के लिए आपके पास ओपन है सोर्सेज, एमआरशिप, इन सारी चीजों के लिए यू कैन गो। इतनी सारी चीजें अगर आप बताना चाहो ना तो एक दिन भी कम पड़ जाए। अब इसके बाद अब आते थोड़े ऊपर लेवल पे, अगर आप, ये तो बी फॉर्म के लेवल की बात थी, अब अगर आप कर लेते हो एम फॉर्म, एम फॉर्म में आप जाने के बाद आप एक, जो कि कंप्लीट होने के बाद आप एक कंप्लीट साइंटिस्ट बन जाते हो जिस भी ब्रांच में आपसे कर रहे हो। आप फिर चाहे फार्मास्यूटिकल्स में हो, क्वालिटी एश्योरेंस में हो, फार्मास्यूटिक्स में चाहो, किसी भी फार्माकोलॉजी में, उस टाइम पे आप एकेडमिक्स में जाते हो तो एज असिस्टेंट प्रोफेसर आपकी बहुत ही अच्छी सैलरी रहेगी, आप अच्छे से कर सकते हो। उसके अलावा यू कैन गो इन R&D, हम्म। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप जा सकते हो। अगर आप उस टाइम पे इंडस्ट्री में भी जाते हो तो आप एक अच्छी पोस्ट पर काम करते हो वहां पर, उसके बाद आपके अंडर में लोग काम करते हैं। तो इतना सारा स्कोप है ना फार्मेसी में कि आप जिस फील्ड में जाना चाहो वहां पर जा सकते हो। और उसके बाद ये तो हमारी फार्मेसी से रिलेटेड हो गई। अब इसके बाद किसी को ये सब पसंद नहीं आता तो यू कैन प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम फॉर एनी SSC हाँ। UPSC, आप जा सकते। बट जो हमसे नीचे वाले बंदे, वो हमारी लेवल पे नहीं आ सकते। नहीं आ जैसे सकते। मैं बता रहा हूँ कि जो आर्ट्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, अदर फील्ड के लोग हैं वो हमारा काम नहीं कर सकते, बट हम उनका काम कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक बेनिफिट वाली बात है। तो ये इतने सारे स्कोप हैं, डिटेल में अब अगर आप चाहो तो किसी और सेशन में हम बात कर सकते हैं इस पर। तो बाकी अभी तो आप इतना समझ लीजिए। सो व्यूवर्स, जैसे आपने देखा, सर हैज प्रॉपरली उन्होंने डिवाइड करके बोला कि एकेडमिक्स में ये स्कोप है, बिजनेस में ये स्कोप है, रिसर्च में ये स्कोप है। सो आई होप आप सबको क्लियर होगा। एंड अगर आपको कोई स्पेशल वीडियो कोई चाहिए, सो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा दैट एनी स्पेसिफिक वीडियो, तो सर अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, हम वी विल कोलैबोरेट अगेन। सो प्लीज डू शेयर योर कमेंट्स श्योर। इन द कमेंट सेक्शन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर जेन्युइनली एन इंस्पिरेशन, लाइक आपने स्टडीज के साथ साथ साइमल्टेनियसली एक यूट्यूब चैनल भी चलाया है एंड आप बहुत सारी मल्टीपल चीजें करें। सो एक कॉमन क्वेश्चन जो बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स या नॉर्मली किसी स्टूडेंट के दिमाग में आता है, दैट हाउ टू बी अ सक्सेसफुल फार्मासिस्ट, या ये जो 4 साल है या ये जो 6 साल की जर्नी है फार्मेसी की, उसको कैसे यूटिलाइज करे, उसका पूरा कैसे उपयोग करे। सो आप एनी पॉइंट्स और एनी एडवाइसेस स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे उस बारे में? श्योर श्योर। देखिए देखिए, जब हम 12th पास करके आते हैं हमारी बैचलर में, तो इस टाइम पे क्या रहता है स्टूडेंट के, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि लगभग एज रहती है हम लोगों की 20
22, 23, 25 के बीच, इतने के अंदर हम रहते हैं। अब यही हमारा एक गोल्डन एज होती है, इसी में हमको पढ़ाई भी करनी है, इसी में हमको हमारे सारे मतलब जो है मजाक मस्ती, हमको मेमोरीज भी इसी टाइम पे बनानी है। राइट। सारी चीजें, कॉलेज मेमोरीज भी, दोस्तों के साथ घूमना फिरना और सारी चीजें जो, ताकि हम बाद में याद कर सके उस। तो इस टाइम को इस तरीके से क्या रहते हैं कि कुछ बच्चे, मैं सबका नहीं बोल रहा हूँ, कुछ बच्चे इसको एंजॉय उतना नहीं कर पाते हैं, या तो वो पूरी तरह से अपनी स्टडी में व्यस्त हो जाते हैं इतना ज्यादा कि ना उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटी, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मतलब ये सारी चीजें वो नहीं कर पाते, उनका ओनली ऑन फोकस रहता है पढ़ाई पर, है ना। और कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि इनको मतलब ही नहीं रहता पढ़ाई से, वो हमेशा बस घूमना, दोस्तों के साथ एंजॉय करना और निकाल देते 4 साल। तो ये जो इन दोनों के बीच में इंजॉयमेंट और स्टडी, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना सबसे मेन जो है, वो है सबसे कठिन बात। कि आपको उतनी स्टडी भी करनी है, आपको उतना एंजॉयमेंट भी करना है, इतनी मेमोरीज भी क्रिएट करनी है, और एक अच्छे से आपको अच्छा नॉलेज लेकर फार्मेसी से हमें कंप्लीट करके निकलना है। उस टाइम पे मैं रिकमेंड करूंगा बच्चों को कि आप पढ़ाई पर तो अपना फोकस करिए सबसे ज्यादा, पढ़ाई और जो है अपना प्रैक्टिकल नॉलेज, वो सबसे बढ़िया होना चाहिए। साथ में आपको एक एक सक्सेसफुल फार्मासिस्ट नहीं, मैं बोलूंगा एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए हम्म। अपनी नॉलेज के साथ साथ अपनी पर्सनालिटी को, अपने बिहेवियर को भी डेवलप करना जरूरी है। ऐसा राइट। नहीं है कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो बट आपका जो बिहेवियर है दूसरों को लेकर बिल्कुल भी बढ़िया नहीं, आपकी पर्सनालिटी इतनी भी अच्छी नहीं है कि मतलब कोई सामने वाला आपसे बात भी ना करना चाहे। तो एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए आपको ये सारी चीजें मेंटेन करके चलना है। तो आपको पढ़ाई भी बराबर करनी है जितना कि आपके लिए जरूरी है, कि आपको इतना नॉलेज इस सेमेस्टर में या इस ईयर में होना चाहिए। साथ में आपको कुछ लोगों के साथ मिलजुल कर भी रहना है, किस तरीके से बातें करनी है। कुछ लोग रहते हैं कि जैसे कि मैं अपना बता रहा हूँ, मैं गाँव से निकल के शहर में आया था भोपाल पढ़ने एक्चुअली, है ना। तो उस टाइम पे क्या नए लोग मिलते हैं, तो किस तरीके से उन लोगों से बात करना है, किस तरीके से इंटरेक्शन करनी है, कन्वर्सेशन स्किल, बोलचाल, बिहेवियर, ये सारी चीजें भी हम साथ साथ डेवलप करते हैं हमारी स्टडी के साथ। तो वो सारी चीजें भी करना। अब ऐसा नहीं कि हम आए हैं किसी दूसरे शहर में पढ़ने, तो हम अपने हॉस्टल के रूम में या अपने ही रूम में बैठे हैं, बाहर लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज भी गलत है। आप यहाँ से अच्छे मार्क्स से तो पास हो जाओगे, लेकिन जब आप कहीं जॉब के लिए जाओगे तो वहां पर ये चीजें मैटर करेंगी, आपकी, आपका बिहेवियर, आपका कन्वर्सेशन स्किल, और ये सारी चीजें तो वो आप साथ साथ डेवलप करते चलिए। आपकी अगर दोस्तों के साथ घूमिए फिरिए, थोड़ा ट्रेवल भी करिए, थोड़ा बाहर नए शहर में आओ तो उस चीज को समझिए, वहाँ के लोग किस तरीके से रहते हैं, कैसे बोल चाल है वहां पर, किस तरीके से बातें करते हैं, वो सारी चीजें अपने में ढालने की कोशिश करिए, और पढ़ाई भी उतनी करिए। इन चीज को बैलेंस बना के चलोगे ना, तो आप फ्यूचर में कहीं भी, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप फिर चाहे एकेडमिक्स में जाओ तो आप वहां पर लोगों को समझ पाओगे कि यार ये इस बंदे को इस तरीके से नहीं, इस तरीके से समझ में आया, क्योंकि इस जगह पे ये रहता है, यहाँ का माहौल इस तरीके से, आप माहौल समझने लग जाओ, उस हिसाब से पढ़ाओगे। जैसे आप भोपाल का एक अगर मैं देखूं, मैं भोपाल के बच्चों को समझाऊंगा, वो थोड़ी एक अलग लैंग्वेज रहेगी, लेकिन आप जहाँ से हो, मुंबई महाराष्ट्र, वहाँ के लोगों के लिए कुछ थोड़ा अलग एक्सेंट रहता है ना। राइट। वो चीजें बस आपको अपनी कन्वर्सेशन स्किल में लेके आनी है, कि कुछ ऐसा बताओ कि इस जगह के लोग भी समझ सके, इस जगह के। तो अपनी पर्सनालिटी और साथ साथ में स्टडी दोनों को मेंटेन करके चलो, आप एक सक्सेसफुल फार्मासिस्ट के साथ साथ एक सक्सेसफुल इंसान भी बन जाओगे। राइट। सो व्यूवर्स, आपने जैसे देखा कि सर ने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन दिया है आपको कि बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है बिटवीन योर फन एंड योर स्टडीज। एंड अगर आप एक माइग्रेंट हो, कोई शहर गांव से शहर जा रहे हो, सो डेफिनेटली वहाँ की चीजें अडेप्ट करो, वहाँ का कॉन्वर्जेशंस करो। सो दैट इज व्हाट सर का वन ऑफ द सक्सेस मंत्रा, कि सर ने भी इतनी ज्यादा सब्सक्राइबर्स, इतनी ज्यादा आगे सक्सेस कैसे गेन किया, दैट इज व्हाट इज हिज वन ऑफ सक्सेस मंत्रा। सो आई होप आप सबको हेल्प होगी उससे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आजकल लोग जब फार्मेसी में आ जाते हैं, 4 साल हो जाते हैं, जब मास्टर्स करना होता है तो वो काफी कंफ्यूज रहता है कि उन्हें कोलॉजी में करना है, कोग्नोसी में, और नाइपर से करना है, या कौन से इंस्टीट्यूट से। तो कैन यू प्लीज इलेबोरेट द इम्पोर्टेंस के अगर मास्टर्स करना है तो कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से करने की क्या जरूरत है, लाइक प्लेसमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई और पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आप खुद राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, सो दैट इज वन ऑफ द रिनाउंड यूनिवर्सिटी। सो इम्पोर्टेंस क्या है कोई मास्टर्स अच्छी यूनिवर्सिटी से करने की, और सब्जेक्ट्स कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए बहुत ज्यादा जब हम जैसा कि आपने बताया बैचलर करके मास्टर में जाते, तो कंफ्यूजन रहता है कि हमें किस ब्रांच से करनी है।
लोग मतलब मैं जैसे देख पाता हूँ यूनिवर्सिटीज ने ब्रांच को ना रैंकिंग दे रखी है एक तरीके से। जैसे हाँ अगर टॉप पे बात करें तो फार्मास्यूटिकल साइंस, उसके बाद फार्मास्यूटिक्स, देन क्वालिटी अश्योरेंस, देन अदर करेक्ट। अदर जो भी जितनी भी ब्रांचेस है। तो इस तरीके से बच्चों को क्या लगता है कि जो केमिस्ट्री वाला बच्चा है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसको हाँ अच्छा हाई पे लेवल की जॉब मिलेगी। जो अगर सुडिक्स का है वो थोड़ा मीडियम है, मॉडरेट टाइप का, तो उसको नॉर्मल मिलेगा। और जो क्यूए का बंदा है, क्वालिटी एश्योरेंस अदर भी ब्रांच का, तो वो सबसे लो लेवल का बंदा है, उसको कम रहेगी, तो वो सब्जेक्ट हमें नहीं लेना। ये सबसे बड़ा मिथ है, ये यूनिवर्सिटीज ने भी कर रखा है। और कुछ बच्चे भी, स्टूडेंट जो पास आउट है, लाइक हम्म केमिस्ट्री से पास आउट है, तो बोलेंगे कि केमिस्ट्री इज द बेस्ट एंड ऐसा ऐसा। तो ये कंफ्यूजन में आप बच्चों का मिस दूर करना चाहूंगा स्टूडेंट्स, कि सब्जेक्ट एंड कॉलेज आपकी करियर में अगर मैं बात करूं तो 10% रोल प्ले करेंगे। एक तरीके से देखा जाए, अगर आपने मान के चलो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, अच्छा जैसे कि मेरा है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, हम्म अगर मैं ले लिया फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, लोगों के हिसाब से बहुत रेप्यूटेड हाई लेवल का सब्जेक्ट है, बट करेक्ट। मुझे ये, मैंने इसमें 2 साल दिए, मेरे को आता कुछ है नहीं इस चीज में, मैंने कभी पढ़ाई नहीं करी। मैंने सोचा अरे इतने हाई लेवल का है, आराम से मुझे तो जॉब मिल जाएगी, फार्मास्यूटिकल में तो बहुत ज्यादा आसानी से मिल जाती है, लोग राइट। मानना है ऐसा। मैं बड़ा मतलब खुश होके अपने 2 साल निकाल दिए, मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो, कुछ भी मेरे को आया नहीं, तो मैंने ऐसे ही निकाल दिए। तो और यूनिवर्सिटी भी मान के चलिए मैंने नाइपर से निकाला। तो हम्म जब बात आती है नौकरी की, प्लेसमेंट्स की, उस जगह पर ये नहीं देखा जाता कि आपका ब्रांच है, ठीक है, वो उस ब्रांच के बच्चे आएंगे, मतलब आएंगे हायरिंग के लिए कंपनीज, तो उस टाइम पे ये नहीं देखेंगे कि आपकी ब्रांच अच्छी है तो हम आपको ले लें, आपका कॉलेज अच्छा है तो हम आपको ले लें। वो उस टाइम पे देखते हैं कि आपको आता कितना है, आपको नॉलेज कितना उस फील्ड का, ठीक है। तो यही काम अगर आप क्यूए में हो और आपका कॉलेज इतना ज्यादा नहीं है रेप्यूटेटेड, नॉर्मल बेसिक्स का कॉलेज है, बट आपको आपको क्यूए का इतना डीपली नॉलेज है, क्वालिटी एश्योरेंस में, क्यूबीडी में आप हर एक इंस्ट्रूमेंट चलाना जानते हैं, हम्म एचपीएलसी से लेके एचपीटीएलसी, यूबी, आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट दे दो, यू कैन रन इट। एंड प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ आपको थ्योरिटिकल नॉलेज भी बहुत अच्छा है, आप जो कि सारी चीजें आसानी से मेंटेन कर लेते हो। तो उस टाइम पे वो जो नाइपर का बंदा है ना, उसकी जगह पर आपको ले लेंगे, क्योंकि उनको उनको डिग्री यहाँ पर लगा के आपसे काम नहीं करवाना, उनको काम देख के आपसे काम करवाना, उनको हम्म फर्क नहीं पड़ता कि आप नाइपर से पढ़े हो, सुडिक्स से पढ़े हो, केमिस्ट्री से पढ़े हो, आपको नॉलेज कितना आता है, आप हमारे लिए, हमारी कंपनी के लिए कितने बेनिफिशियल हो सकते हो, वो मैटर करता है, ठीक है। तो आपको, अगर आप किसी भी कॉलेज से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, वो मैटर आपके करियर में वो फील्ड के लिए कर सकता है। बाकी आपका करियर कितना ब्राइट होने वाला है वो आपकी नॉलेज पे डिपेंड करेगा, नॉलेज आपकी पे। स्किल्स पे डिपेंड करेगा। वो ये डिपेंड नहीं करेगा कि आपका सब्जेक्ट अच्छा था तो आपको हाई लेवल की जॉब मिलेगी, और हम्म आपका सब्जेक्ट ऐसा था। क्यूए इन सबकी एक अपना अपना अलग लेवल का स्टैंडर्ड है, वो अपनी अपनी फील्ड में बेस्ड है। आप क्यूए में करोगे, आपके उस डिपार्टमेंट में आपको बढ़िया से बढ़िया नौकरी मिलेगी, आप सुटिक्स में करोगे आपको प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज इस चीजों में आपको जॉब मिलेगी। बस सब्जेक्ट एक आपकी थोड़ी सी फील्ड को चेंज कर सकते हैं, ना कि आपके करियर को चेंज कर सकते, बस इतना सा डिफरेंस है। ओके कोई भी सो सब्जेक्ट, कोई भी कॉलेज इतना मैटर नहीं करेगा आपके फ्यूचर में, बस आपको नॉलेज बढ़िया होनी चाहिए, स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। राइट। सो व्यूवर्स, जैसे आपने देखा कि इंस्टीट्यूट मैटर उतना नहीं करता, बट आपकी नॉलेज 2 साल में जो आप मास्टर्स में अपनी प्रैक्टिकेबिलिटी, एचपीएलसी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, वो कैसे ऑपरेट कर रहे हो, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मैटर इन योर फ्यूचर एंड योर करियर। सो सर, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन। जब स्टूडेंट्स ये 4 साल फार्मेसी के करते हैं तो बेसिकली उन्हें काफी ज्यादा ऑनलाइन कोर्सेज अब आ चुके हैं ड्रग डेवलपमेंट, ड्रग डिस्कवरी पे, एंड काफी इंटर्नशिप्स भी अवेलेबल है। सो आप उन मतलब स्टूडेंट्स काफी ज्यादा स्केप्टिकल होते हैं, वो सोचते हैं कि हमें इंटर्नशिप करनी चाहिए या नहीं, कोर्सेज करने चाहिए या नहीं। सो आप उन कोर्सेज और इंटर्नशिप की इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। एंड अब तो इंटर्नशिप को फार्मेसी सिलेबस में भी कंपलसरी कर दिया गया है कि 1 मंथ की चाहिए इन बी फार्मेसी। सो कुड यू प्लीज थ्रो लाइट अपॉन द टॉपिक के इंटर्नशिप्स और कोर्सेज कौन से अच्छे हैं, कोई कंपनीज रेकमेंड कर सकते हैं आप, और कोई कोर्सेज, तो दैट वुड बी ग्रेट। देखो, जैसा कि आपने बोला इंटर्नशिप अभी कंपलसरी है, करना चाहिए नॉलेज के लिए, जी। बट एक्चुअली मेरे टाइम पे क्या था कि लॉकडाउन की वजह से इंटर्नशिप हमारी हो नहीं पाई किसी भी उसकी, है हाँ ना, मतलब किसी भी स्टूडेंट की नहीं हो पाई।
तो एक्चुअली इंटर्नशिप को लेकर मेरा अभी इतना नॉलेज है नहीं, तो मैं इस पर ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा। नो वरीज। बाकी अगर आपको हो तो आप जरूर स्टूडेंट को बताएं। तो इंटर्नशिप को लेकर आप अपने हिसाब से देखो, क्योंकि मैंने करी भी नहीं है, तो मैं कुछ इस पे बोल भी नहीं सकता अभी, सॉरी। ओके, ना ना, नो नो वरीज, नो वरीज सर। सो सर, जाते जाते वक्त आप कुछ मोटिवेशनल वर्ड्स या कुछ एनीथिंग आप व्यूअर्स को बोलना चाहेंगे टारगेट जीपैट के और बेस्ट फार्मेसी टिप्स एंड ट्रिक्स के, कुछ आप उनको, एनीथिंग दैट यू वांट, लास्ट वर्ड बिफोर वी एंड द हाँ सेशन? ठीक है। हाँ मैं ये स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूंगा इस टाइम पे, जो भी मान के 2024 या जीपेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मेनली है कि इस टाइम पे देखो, अभी आपका जो है कि आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है। अगर आप प्रिपेयर करना चाह रहे हो 2024 के लिए, तो आप अभी से प्रिपेयर करने लग जाते हो। अपने कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर करते चलिए, बेसिक आप पढ़ते चलिए, और आपको एंड में आते आते भी आपके पास पूरा पूरा 1 साल है। आप एंड में आते आते बहुत बढ़िया प्रिपेयर कर पाओगे। जनरली स्टूडेंट करते हैं कि लास्ट के 2 या 3 4 5 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि उस अगर आप इस टाइम पे जिस भी सेमेस्टर में हैं, आप उस सेमेस्टर की प्रिपरेशन जीपेट के लेवल से करिए। आप ये समझ लीजिए कि ये वाले सेमेस्टर को मैं ना कि सेमेस्टर पास करने के लिए निकाल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मतलब इसको मैं जीपेट निकालने के लिए पढ़ रहा हूँ। तो आप उस लेवल से अगर पढ़ाई करते जाओगे, तो आपका सेमेस्टर भी अच्छी रैंक से निकलेगा, अच्छे नंबर से निकलेगा, और साथ में आपकी जीपेट की प्रिपरेशन भी होती चली जाएगी। और एंड एट द एंड यू कैन रिवाइज इन लास्ट 2 and 3 मंथ। तो आप जो पूरा रिवाइज करोगे ना, आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि नहीं यार, मैंने उस टाइम से स्टार्ट किया था, तो इस टाइम तक मेरे पास बहुत कुछ है, मतलब आता है मेरे को, और मेरे को बहुत कुछ समझ में आता है। बस मुझे रिवाइज करना है। नया पढ़ने की कोई आपको जरूरत ही नहीं लगेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके होंगे उस टाइम। तो अगर ओके। आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो अभी से करिए। और मेन बात कि इस टाइम पे अगर आप ऑनलाइन, जैसा कि मैंने बोला, आप ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, तो इस टाइम पे आपके पास ऑनलाइन भी इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, आप खुद कंफ्यूज रहोगे कि मुझे कहाँ से पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हो कि मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ, और मैं भी एक जीपेट की प्रिपरेशन कराता हूँ। तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा आपसे कि आप आओ, आई एम द बेस्ट, मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। आप यूट्यूब पे जितने भी सारे बेस्ट चैनल्स हैं, आप सबको एक एक बार उसको देखिए, आप सबका डेमो लीजिए। जिस भी टीचर से आपको समझ में आता है, जो चीज जो आपको बेस्ट लगता है, आप वो सिलेक्ट कीजिए, ना कि किसी की बातों में आकर। कुछ टाइम पे क्या होते हैं, कुछ लोग इन्फ्लुएंस होके ले लेते हैं। अब जैसे कि अपन दोनों का सेशन है पयाम, अब हम बोल देंगे स्टूडेंट को कि स्टूडेंट्स आप हमारा कोर्स ज्वाइन करो, इसमें आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, और स्टूडेंट्स हम पे ट्रस्ट करके ज्वाइन कर लेते हैं, और बाद में पता करेक्ट। चलता है कि हम उतनी अच्छी प्रिपरेशन को नहीं दे पा रहे नहीं जितनी दे उनको पाए। चाहिए रहती। तो इसलिए स्टूडेंट्स, आप किसी की बातों में ना आए। इतने सारे आपको मिलेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आपको बोलेंगे आप हमारा ज्वाइन करो, हमारा ज्वाइन करो। आपको अपने दिमाग से देखना है, आपको उसकी डिटेल निकाल के उससे पढ़ना है, और टीचर को देखना है, उसकी बैकग्राउंड देखना है, कैसा आता है, समझाने का क्या तरीका, किस तरीके से पढ़ाता है। वो सारी चीजें देखने के बाद आप सिलेक्ट करिए कि आपको किस प्लेटफॉर्म से पढ़ना है। ठीक है। तो इसमें आपको किसी की बातों से नहीं आके कोई भी कोर्स इन्फ्लुएंस। ज्वाइन करना है। तो ठीक है, तो बस लास्टली इतना वोट ऑफ मैंने। थैंक्स टू राहुल सर, थैंक यू सो मच सर, आपने आज का सेशन में अपना प्रेस्टिजियस टाइम दिया एंड इतने अच्छे गाइडेंस और इतने सिंप्लीफाइड वे में सब चीजें उन्हें उन तक पहुंचाई। एंड ऑल्सो मैं सारे व्यूवर्स से एक बहुत ही ज्यादा हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर के, टू रेफर, मैंने खुद खुद भी देखे हैं, मैं खुद भी वहां से पढ़ा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एनाटॉमी के बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियोस हैं, मैं उनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, प्लीज आप उसको जरूर देखिए। एंड कोई डाउट्स है तो वो सॉल्व भी करते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में उनके कोई डाउट्स है तो वो भी डाल दीजिए, या फिर इस वीडियो में आपको कोई और चीज ऐड करानी है फॉर द नेक्स्ट सेशन, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मैं और सर उस चीज पे जरूर आगे काम करेंगे। राइट। श्योर। ओके, थैंक ओके। यू सो मच व्यूअर्स। थैंक यू सो मच, फैम।